Okay, so I hope my screen is visible to all of you, and let's start discussions. So, in the last lecture, we talked about concurrency control, first lock-based protocols, shared and exclusive locks, how to lock any data item for accessing, and after using that, after performing operations, how we can perform unlock on that data item so that other transactions can access it for any specific purpose. And we discussed in very much detail. I tried to explain each and every instruction given in the book, how we can conclude the things. So overall, the story was we were discussing about two-phase locking. So where we concluded that once a transaction starts acquiring any lock, it is known as its growing phase, and in growing phase, any transaction cannot release locks, it can only acquire the locks. And once any transaction perform the very first unlock operation, then its shrinking phase starts, and after that, that particular transaction cannot acquire new locks, only it can release the locks. So this was the story of growing and shrinking phase, and we saw that it always ensures serializability because definitely one transaction will acquire all the locks, and after that it will release the locks on data item, then only second transaction or other transactions will be able to acquire locks on it or access it. सो आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ग्रोइंग फेज क्या है, श्रिंकिंग फेज क्या है. तो बुक से हमने लास्ट टाइम दो एग्जांपल्स को भी देखा So, था. हाउ हाँ वो so you repeated one line at the last, like serializability achieve होती है. So please repeat that. अभी मैं आ रहा हूँ उस पे, इसका लास्ट पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा. Yes, sir. So T3 was the modified transaction जहाँ पर हमने ऑपरेशंस को नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का जो सिनेरियो था वो सिर्फ चेंज किया, बिकॉज किसी भी सिंगल इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शंस को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. But here you can see T3 has acquired lock on B as well as exclusive lock on A also. But after performing all the operations, then it is releasing the locks on B and A. Whereas you can see यहीं पर हमारा जो ट्रांजेक्शन T3 का जो B डेटा आइटम पर काम है वो फिनिश हो गया है, यहाँ पर भी वो अनलॉक कर सकती है. बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ two-phase locking where one transaction is acquiring lock first till here, and this is the growing phase, and after that when shrinking phase will start, then unlocking will start, and once any transaction starts unlocking it cannot perform the lock operation. तो यहाँ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो दोनों T3 transaction T3 and T4 है, both of these are the examples of two-phase locking, and I hope now all of you understand why it is two-phase locking. तो आज हम बात करेंगे कुछ disadvantages की two-phase locking की भी. तो क्या सिनेरियो है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसके क्या मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं two-phase locking की, ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे. सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट में एक लाइन है, दिस प्रोटोकॉल एश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट इन two-phase locking if we are managing the things by applying this 2PL protocol. Definitely serializability will be there. So this can be proved that the transactions can be serialized in the order of their lock points. So lock points के order से हम transactions का order decide कर पाएंगे. जिस transaction का lock point पहले आएगा वो सबसे पहले रन होगी सीरियल मैनर में, और उसके बाद जिसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का जिसका लॉक पॉइंट आएगा, अगर सपोज 3 ट्रांजैक्शंस हैं तो उसी सीक्वेंस पे हम ट्रांजैक्शंस को अगर अरेंज करेंगे, सपोज 3 ट्रांजैक्शंस आर देयर, सो इफ T1 achieves lock point first, then T3, then T2, then we can say that definitely this given parallel schedule is equivalent or it is serializable because it is equivalent to T1
then followed by T3, then followed by T2. So लॉक पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब अपना फाइनल लॉक एक्वायर करती है, या फिर और भी सिंपल वे में बोले, जब कोई भी ट्रांजैक्शन अपना फर्स्ट अनलॉक परफॉर्म करती है, तो इस अनलॉक से पहले वाला जो पॉइंट है या उस अनलॉक पॉइंट को अगर हम बोलना स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज बेसिकली लॉक पॉइंट। सो लॉक पॉइंट हमें चेक करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन का पहले आया है, यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन ने स्टार्ट किया है सबसे पहले रिलीज करना, बिकॉज वी नो दैट उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नया लॉक एक्वायर नहीं करेगी, तो जब भी रिलीज होगा तो एक ही बार में सारे होंगे, चाहे वो जितनी मर्जी डेटा आइटम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी शेड्यूल की हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक एग्जाम्पल केवल नहीं है, तो अभी के लिए सिर्फ सिंपल सा इतना ही आपको याद रखना है कि जिस भी ट्रांजैक्शन का लॉक पॉइंट पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी इन अ सीरियल मैनर, एंड आफ्टर दैट अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर दो ही हैं तो फिर दो ही सीरियल शेड्यूल्स बनते हैं, या T1 फॉलोड बाय T2 या फिर T2 फॉलोड बाय T1। तो लॉक पॉइंट हमें चेक करना है, और लॉक पॉइंट और कुछ नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन अगर दो ट्रांजैक्शंस है T1 और T2, तो जो भी पहला अनलॉक परफॉर्म करेगी तो भाई वो उसका लॉक पॉइंट है। तो हम पैरेलल शेड्यूल्स में बड़ी इजीली इंस्ट्रक्शंस को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले अनलॉक मोड परफॉर्म कर रहा है, तो वो पहले आएगी सीरियल में, और उसके बाद फिर दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, आई थिंक कुछ एक सिनेरियो गिवन था लॉक पॉइंट से रिलेटेड भी। चलो, तो यहाँ पर 2PL की बात हुई है, ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज की बात हुई है, एंड यहाँ पर लॉक पॉइंट की बात हुई है। सो ओके, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं। आप देख सकते हो तीन अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, T5, T6, T7, और यहाँ पर सबसे पहले T5 अपने ग्रोइंग फेज पे गया, तो जो इसका ग्रोइंग फेज है वो लॉक एक्वायर किया है इसने एक्सक्लूसिव ए पर, और शेयर्ड लॉक एक्वायर किया है बी पर। तो जैसे ही ये अपना अनलॉक परफॉर्म कर रहा है, तो भाई यहाँ पर इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे इसने ए को रिलीज किया, तो ट्रांजैक्शन T6 ने ए को एक्वायर किया है फॉर एक्सक्लूसिव लॉक, एंड फिर इसने कुछ अपडेशन करके फिर इसको अनलॉक किया। तो यहाँ से आप बड़ी इजीली देख सकते हो भाई जो भी इसका सीरियल शेड्यूल बनेगा वो T5 फॉलोड बाय T6 फॉलोड बाय T7 बनेगा, और देख के भी हम बता सकते हैं कि एक सीरियल शेड्यूल ही गिवन है जहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस T5 की पहले चल रही है फॉलोड बाय T6, एंड लास्ट में हमारा T7 स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाकर T7 भी हमारा जो है वो अनलॉक कर देगा इस शेयर्ड लॉक को डेटा आइटम ए पर। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, ऑल्दो ये किसी और चीज का एग्जांपल है, मैं इसको फर्दर डिस्कस करूंगा, बट अभी समझने के लिए हम सिर्फ यही बोल सकते हैं जो अभी आदित्य ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ इट इज इंश्योरिंग सीरियलाइजेबिलिटी। तो भाई जिसका भी लॉक पॉइंट पहले आएगा तो डेफिनेटली वो जो है पहले एग्जीक्यूट होगी। दिस इज द मैटर। बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, तो ये कह रहा है भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कुछ हो सकते हैं जो नहीं ऑब्टेन होते टू फेज लॉकिंग से, एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टू फेज लॉकिंग के साथ जो आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या है उसको डिटेल में हम देखते हैं, और डेडलॉक अगर आ जाएगा तो फिर ये फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स को भी रेज कर सकती है, जस्ट लाइक कैस्केडिंग रोल बैक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेडलॉक का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही ज्यादा डिटेल में दो पूरे अलग अलग चैप्टर्स हम पढ़ते हैं डेडलॉक क्या होता है, तो वहां पर हम प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बिकॉज मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर हम प्रोसेसेस की जगह बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, बिकॉज डेफिनेटली हियर multiple transactions are going to run or execute concurrently. So two-phase locking does not ensure freedom from deadlock. तो भाई deadlock से freedom नहीं मिलती, यानी कि deadlock situation आ सकती है, deadlock problem आ सकती है। तो deadlock क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर अगर डेडलॉक आ गया तो फिर हमें रोल बैक करना पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर बाकी सारी ट्रांजैक्शन भी अफेक्ट होंगी। तो कैसे होंगी, तो मैं पहले उसकी तरफ चलता हूँ, मैं फिर से आऊँगा इन दो बचे हुए पॉइंट्स की तरफ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम थोड़ा डेडलॉक का इफेक्ट देख लेते हैं कि डेडलॉक क्या कहता है।
तो भाई ये एक गिवन है हमें पार्शियल शेड्यूल, जहां पर हमारे पास है दो अलग अलग ट्रांजेक्शंस T3 एंड T4। तो ये अभी पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है दोनों ट्रांजेक्शंस, एक पार्शियल शेड्यूल गिवन है, इसमें कुछ भी कमिट नहीं हुआ है, इवन लॉक भी रिलीज नहीं हुई है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो गिवन पार्शियल शेड्यूल है, यहाँ पर डेडलॉक की प्रॉब्लम आ रही है। तो डेडलॉक होता क्या है, मैं पहले एक सिंपल से वे में आपको समझाता हूँ, उसके बाद इस एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो भाई डेडलॉक अगर दो अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं T1 T2 या यहाँ पर T3 T4 है, सो ट्रांजेक्शन T3 ने एक डेटा आइटम को होल्ड किया हुआ है, सपोज यहाँ पर B को होल्ड किया हुआ है, और वो वेट कर रही है ट्रांजेक्शन डेटा आइटम A के लिए, तभी जाकर उसका टास्क कंप्लीट होगा। और ट्रांजेक्शन T4 ने होल्ड किया हुआ है A को, जो T3 को चाहिए, और इसको अपना फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए चाहिए B, जो है T3 के पास। सो T3 के पास B है, उसको A चाहिए, और T4 के पास A है और उसको B चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो भाई दोनों ही ट्रांजैक्शंस वेट करती रहेंगी कि भाई पहले मुझे B मिल जाए तो मैं अपना काम कंप्लीट करूं, ऐसा T4 सोचेगी, और T3 सोचेगी कि मुझे A मिल जाए तो मैं अपना काम फिनिश करके यहाँ से कमिट करूं। लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शंस अपने अपने एक्वायर्ड डेटा आइटम को रिलीज नहीं करेंगी, जस्ट बिकॉज they are waiting for some other data item। so इस कंडीशन को बोलते हैं भाई डेडलॉक की दोनों ही ट्रांजैक्शंस स्टक हो जाएंगी, इनमें से कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। सो आई होप आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि डेडलॉक क्या है। तो इसी तरह हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलते हैं कि प्रोसेस ने एक ऐसा रिसोर्स एक्वायर किया हुआ है और उसको एक दूसरा रिसोर्स चाहिए जो किसी और प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है, और वो वाला प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स की वेट में है जो इस T1 प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है। तो दोनों ही प्रोसेस वेट करते रहेंगे कि मुझे दूसरे वाले के पास जो रिसोर्स है वो मिल जाए, तब मैं अपना काम फिनिश करूंगा। तो दोनों ही प्रोसेस फर्दर आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं हमेशा DBMS के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जरा ध्यान से देखोगे। ट्रांजैक्शन T3 ने जो लॉक एक्वायर किया है, एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर कर लिया है B पर, यानी कि ये B में अपडेशन कुछ करना चाहता है, इसने B को अपडेट भी कर दिया, बट यहाँ पर इसने अनलॉक B नहीं किया है। सिमिलरली ट्रांजैक्शन T4 की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने शेयर्ड लॉक एक्वायर किया है A पर, यानी कि ये सिर्फ A की वैल्यू को रीड करना चाहता है। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, अब ये चाहता है लॉक ऑन B, तो ये B की वैल्यू को भी रीड करना चाहता है शेयर्ड लॉक लगाकर। लेकिन जब तक ये ट्रांजैक्शन T3 इसको अनलॉक नहीं करेगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं होगी, तो ये वेट करने बैठ जाएगा यहाँ पर कि मुझे कब B पर एक्सेस मिलेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर T3 की भी बात करें तो T3 ने ऑलरेडी B की वैल्यू को तो अपडेट कर दिया, लेकिन अब उसको एक्वायर करना है एक्सक्लूसिव लॉक डेटा आइटम A पर। लेकिन अगर हम जरा ध्यान से देखें तो T4 ट्रांजैक्शन के पास है अभी डेटा आइटम A का एक्सेस, तो ये भी क्या हो गया, जब तक T4 इसको अनलॉक नहीं करेगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। T3 B को एक्वायर कर बैठा है, उसको A की रिक्वायरमेंट है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो कि T4 ने होल्ड किया हुआ है। T4 के पास A ऑलरेडी है, उसको B की रिक्वायरमेंट है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो T3 ने होल्ड किया हुआ है। तो भाई दोनों ट्रांजैक्शन ही चलेंगी नहीं, बिकॉज कोई भी पहले तैयार नहीं है अपने रिसोर्स को या अपने डेटा आइटम को रिलीज करने के लिए। सभी चाहते हैं कि मैं पहले अपना काम पूरा करके फिनिश करके चला जाऊं, बाकी लोग अपना बाद में देखते रहेंगे। सो दिस इज द स्टोरी or problem which is known as deadlock problem। so neither T3 nor T4 can make progress। तो क्यों नहीं है ये सारा मैंने आपको बता दिया है। and such a situation is known as deadlock। तो अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ गई तो ये हम बात कर रहे हैं 2PL के केस में, बिकॉज 2PL यही कहता है कि पहले आप सारे लॉक एक्वायर करो। तो जब तक ये B पर तो इसने लॉक एक्वायर किया, तो ये कहता है मेरा तो ग्रोइंग फेज चल रहा है, पहले मैं A पर लॉक एक्वायर करना चाहता हूँ, तभी मेरा काम फिनिश होगा, एक ही बार मैं श्रिंकिंग फेज में जाऊंगा। बिकॉज यहाँ पर अगर हमने अनलॉक कर दिया तो उसके बाद मैं A को एक्वायर नहीं कर पाऊंगा। सेम प्रॉब्लम T4 के साथ भी है। T4 ने A डेटा आइटम पर तो लॉक एक्वायर किया, लेकिन अगर वो यहाँ पर इसको अनलॉक कर देगा तो फिर वो श्रिंकिंग फेज में चला जाने वाला है, तो फिर वो ये वाली कमांड इशू नहीं कर सकता। तो ये फॉलो तो कर रही है दोनों ट्रांजैक्शंस, या जो गिवन पार्शियल शेड्यूल है ये 2PL को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा है कि भाई हम पहले लॉक एक्वायर करें, तभी हम उसके बाद एक ही बार में रिलीज करेंगे, ग्रोइंग से श्रिंकिंग में जाएंगे। बट
कुछ केसेस में अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्शियल शेड्यूल इवन आफ्टर फॉलोइंग 2PL सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। तो भाई डेडलॉक वेरी डेंजरस सिचुएशन है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहता है भाई, हैंडल करना है हमें डेडलॉक को। तो इसमें से किसी एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दो, तो जैसे ही इसमें से हम किसी एक को रोल बैक कर देंगे तो ये अनडू हो जाएगी, अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगी। तो अगर हमने T4 को रोल बैक किया तो मतलब भी ये डेटा आइटम अभी फ्री है, ये एक्वायर नहीं होगा, तो ये इसको ले लेगा। और अगर हम T3 ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देते हैं तो डेफिनेटली B आइटम है जो वो फ्री हो जाएगी, उसको T4 को हम मिल जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन है जो हम डेडलॉक से बाहर आ सकते हैं। तो डेडलॉक रिकवरी का हमारा एक रिकवरी का हमारा चैप्टर है लास्ट में, दैट वी विल आल्सो सी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सर तो यहाँ पर सर थोड़ा थोड़ा पैरेलल शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लग रहा है सर। पैरेलल तो चलानी ही है, कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम पैरेलल भी चलाएं और कंसिस्टेंसी भी आ जाए। ओके ओके सर। तो ये पैरेलल शेड्यूल नहीं है सर, इसमें कंफ्यूजन है। सर यहाँ पे जैसे T3 स्टार्ट हुआ है तो सर एक्सक्लूसिव लॉक लिखा है, तो सर उसमें ये कहते हैं कि आप राइट कर सकते हो डेटा आइटम B को और रीड कर सकते हो। सर फिर हमने यहाँ पे T4 में लॉक S है सर, ये लॉक S स्टैंड्स फॉर शेयर्ड लॉक। सर इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं वो डेटा आइटम। सर फिर यहाँ पे लॉक SB लगा दिया, तो सर इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये तो मेरा इससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक लेकर T3 बैठा हुआ है और ये उसको रीड करना चाहता है। तो अगर यहाँ पर S होता तब अलाउ हो जाता, बिकॉज सिर्फ रीड एप्लीकेबल होता है कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ पर ये हो गया राइट का केस, ये हो गया रीड का केस, तो एक भी W आ जाए तो ये अलाउ नहीं करता। ओके 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 सर, क्लियर है? यस सर। और सर डेडलॉक की सिचुएशन को हटाने के लिए हम दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर सकते हैं। किसी एक को भी अगर रोल बैक कर देंगे तो ये अनडू हो जाएगी। तो अगर इसने A एक्वायर किया हुआ था तो मतलब इसने नहीं किया हुआ एक्वायर A, तो A उसको मिल जाएगा। अगर हम T3 को रोल बैक कर देंगे तो B फ्री हो जाएगा, तो B इसको दे देंगे। यस सर। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखो, T4 ने एक्वायर किया हुआ है शेयर्ड लॉक A पर और ये एक्सक्लूसिव मांग रहा है, तो फिर से ये रीड राइट आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर शेयर्ड होता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर पहले एक्सक्लूसिव लगा हुआ था, इसको शेयर, ये शेयर मांग रहा था, और यहाँ पर शेयर लगा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव मांग रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारी लॉ कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम SS को ही अलाउ कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी केस SS का नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं X आ रहा है, एक्सक्लूसिव लॉक आ रहा है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है लॉक या डेटा आइटम का एक्सेस देना। क्लियर? यस सर। चलो, तो वही आगे ये कहता है कि टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। तो हमेशा नहीं आएगा, डिपेंड करेगा, कुछ केसेस में आ सकता है किस तरह की इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। एंड ये कहता है कि डेडलॉक के साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं। तो भाई स्टारवेशन occurs कब हो सकता है? if the concurrency control manager is badly designed। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है कि अगर कुछ इस तरह का काम हो जाए तो इसको हम स्टारवेशन बोलने लग जाते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको स्टारवेशन का बताऊं तो भाई ये है कि इन दोनों में से एक ट्रांजैक्शन को तो डेफिनेटली बार बार लॉक मिले जा रहा है, और दूसरी ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा वेट कर रही है कि उसको कोई भी डेटा आइटम पर एक्सेस नहीं मिल रहा। तो एक को अगर बहुत ज्यादा वेट करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड ट्रांजैक्शन, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज हम कहते हैं भाई दोनों ट्रांजैक्शन या जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मल्टीपली कंकरेंटली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अगर हमने एक ट्रांजैक्शन को हाफ एन आवर वेट करा दिया और सेकंड ट्रांजैक्शन को ही हम सारे रिसोर्सेज या डेटा आइटम का एक्सेस दे रहे हैं, सो दैट इज आल्सो अ बैड अप्रोच। सो आवर ट्रांजैक्शन मे बी वेटिंग फॉर एन एक्स लॉक एन आइटम। तो भाई ये हो सकता है कि किसी डेटा आइटम को अपडेट करना हो किसी ट्रांजैक्शन में और उसको हम एक्सेस दे नहीं रहे, उसको हम एक्सक्लूसिव लॉक दे नहीं रहे, और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को हम ग्रांट करे जा रहे हैं शेयर्ड लॉक जो उसको रीड करे जा रही है। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जो एक्चुअल में कुछ अपडेट करना चाहती है ये वेट करती रहेगी। एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन which arises from deadlock problem is starvation। so starvation भी आ सकता है कि किसी केस में हम एक ही ट्रांजैक्शन को रीड का एक्सेस दिए जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव लॉक जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रही है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो वेटिंग में ही पड़ी है, एंड सेम ट्रांजैक्शन इज रिपीटेडली रोल्ड बैक ड्यू टू
डेडलॉक। तो ऐसा भी है कि हम हर बार एक ही ट्रांजेक्शन को बार बार रोल बैक कर रहे हैं और दूसरी को हम कुछ भी नहीं कह रहे। सो these two situations come under the category of starvation. So starvation एक और प्रॉब्लम है जो अराइज कर सकती है इन द केस ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। सो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि स्टारवेशन की प्रॉब्लम ना आए, हर ट्रांजेक्शन को इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर हम रोल बैक एक टाइम पर किसी और ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं डेडलॉक आने पर, तो सेकंड टाइम हम फिर उसी ट्रांजेक्शन को ना करें, हर बार किसी और ट्रांजेक्शन को करें। सिमिलरली हम किसी एक ट्रांजेक्शन को बहुत ज्यादा वेट ना कराएं, हम डेफिनेटली चेक करते रहें कि किसकी ट्रांजैक्शन की कौन रिक्वेस्ट कब आई थी, तो उस एक्सेस उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रांट दें। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में, तो कैसे हम वो मैनेज करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो द पोटेंशियल फॉर डेडलॉक एग्जिस्ट इन मोस्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये कहता है भाई सिर्फ 2PL की बात नहीं है, अगर कोई भी हम लॉकिंग प्रोटोकॉल्स या लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स की बात करें तो डेडलॉक वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो सॉल्यूशन जो हमें इसका कंप्लीट मिलेगा वो हमें मिलेगा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स में, जो एक सेकंड कैटेगरी है, तो वहां पर हमें डेडलॉक नहीं मिलेगा। सो लास्ट में लिखता है डेडलॉक्स आर नेसेसरी इवल, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कहता है व्हेन अ डेडलॉक अकर्स तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैस्केडिंग रोल बैक। तो अगर डेडलॉक आ गया तो उस केस में फिर हमें ये रोल बैक भी करना पड़ेगा, और वो रोल बैक कैसा होगा, कैस्केडिंग होगा। यानी कि अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हमने किया रोल बैक तो उसकी वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू को अगर किसी ने रीड किया होगा तो फिर वो फर्दर सारी ट्रांजेक्शंस क्या हैं वो भी हो जाएंगी रोल बैक। तो ये जो एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ये एक्चुअल में ये वाला एग्जांपल है 18.8 जो हमें गिवन है, तो ये कैस्केडिंग रोल बैक के बारे में ही हमें बता रहा है। सो टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। तो T3 एंड T4 ये सब कुछ बातें हो चुकी। सो यहाँ पर कैस्केडिंग रोल बैक में अकर अंडर टू फेज लॉकिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इलस्ट्रेशन के केस में इन्होंने ये बता रखा है 18.8। सो सबसे पहले ट्रांजेक्शन T5 ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया A पर भी और शेयर्ड लॉक लिया B पर भी, और इसके बाद इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और इसने सिर्फ A को रिलीज किया है। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका वैसे तो हो गया है श्रिंकिंग फेज स्टार्ट, लेकिन इसने B को अभी रिलीज नहीं किया। T6 जैसे ही ये A रिलीज हुआ इसने एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया A पर, तो यहाँ पर T5 ने भी रीड करके राइट की थी A की वैल्यू, और ट्रांजैक्शन T6 भी उस A की वैल्यू को फर्दर अपडेट कर रही है। उसके बाद ये इसको रिलीज कर रही है, और लास्ट में जो T6 है T7 है वो इस अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रही है। तो यहाँ पर ये कहता है लास्ट में बड़ी अच्छी सी स्टोरी। सो ईच ट्रांजैक्शन ऑब्जर्व्स द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। पहली बात, इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं है कि टू फेज लॉकिंग को फॉलो नहीं किया हो, बिकॉज आप देख सकते हो अनलॉक होने के बाद दोनों ही ट्रांजैक्शंस के केस में कोई भी लॉकिंग नहीं हुई है, और यहाँ तो चलो इसने अभी अनलॉक ही नहीं किया है। So, but the failure of T5 after the read A step of T7 leads to cascading rollback of T6 and T7। तो ये कहता है कि अगर जैसे ही इसने रीड कर लिया और यहाँ पर इस स्टेप पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर जो हमारी है T5 फेल हो जाए, बिकॉज अभी ये कॉमिट नहीं हुई है, तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। ये जो T6 है ये इसकी अपडेटेड A की वैल्यू को रीड कर रहा है और ये इसकी अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रहा है। तो अगर ये हमारी फेल हो जाती है तो T5 को हमें करना पड़ेगा रोल बैक, और अगर T5 रोल बैक तक होगी तो फिर T6 भी हो जाएगी और साथ साथ T7 भी होगी, बिकॉज T6 एंड T7 कर रही है 30 रीड डेटा आइटम A पर। तो ये प्रॉब्लम भी टू फेज लॉकिंग में आ सकती है। बड़ी क्लियरली आप देख सकते हो इसमें से कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो 2PL प्रोटोकॉल को फॉलो ना कर रही हो, बट भाई ट्रांजैक्शन तो कभी भी फेल हो सकती है, उसका कभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है कैस्केडिंग रोल बैक ना करनी पड़े? तो उसके लिए ये कहता है कि 2PL के ना दो फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं, मॉडिफाइड प्रोटोकॉल है। एक को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट 2PL और एक को हम बोलते हैं रिगरस 2PL। तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, मैं एक एक लाइन पर यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूँ। सो कैस्केडिंग रोल बैक इज पॉसिबल अंडर 2PL। ये तो हमने देख लिया भी, अगर 2PL भी है तो यहाँ पर भी कैस्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम आ सकती है अगर ट्रांजैक्शन ने 30 रीड किया होगा और जो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है अगर वो फेल हो जाती है तो इन सबको भी रोल बैक होना पड़ेगा। इसी को हम कैस्केडिंग रोल बैक बोलते हैं। So to avoid cascading rollback, we can follow a modified protocol which is known as strict 2PL। तो ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तो strict 2PL क्या कहती है? strict 2PL बड़ी सिंपल सी बात कहती है, a transaction must hold all its exclusive lock till its commit
और अबॉर्ट। तो ये कहता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड किए हैं किसी डेटा आइटम पर, तो भाई वो उसको सबसे लास्ट में ही रिलीज करे, कमिट होने से पहले की स्टेटमेंट होनी चाहिए उसकी अनलॉक की, और उससे पहले वो उसको ना रिलीज करे। यानी कि इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि भाई ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इससे पहले या तो ये बाद में साथ साथ बी को अनलॉक करके तब कमिट हो जाती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज तब डेटाबेस में चेंजेस परमानेंट हो जाते। लेकिन यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखोगे तो इसने ए को तो रिलीज कर दिया जिसकी वैल्यू को ये रीड कर रहे हैं, लेकिन बी डेटा आइटम वाले पर अभी भी इसने अनलॉक परफॉर्म नहीं किया है। तो स्ट्रिक्ट 2PL एक बड़ी सिंपल सी बात बोलती है। और यहाँ अगर हम जरा ध्यान से देखें तो बी पर तो हुआ भी, जो हुआ है वो क्या है, शेयर्ड लॉक एक्वायर हुआ है। लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL एक सिंपल सी बात बोलता है कि एक्सक्लूसिव लॉक को भाई वो बिल्कुल लास्ट तक होल्ड कर रखे, उसको वो रिलीज ना करे, सिर्फ कमिट से पहले ही उस वाले डेटा आइटम पर अनलॉक परफॉर्म करे जहां पर वो उसको यूज कर रही है। तो यहाँ आप जरा देखोगे D6 की अगर बात करें तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है ए पर, और ये अभी कमिट नहीं हुई थी। तो ये अगर यहाँ कमिट हो जाती फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली थी, लेकिन ये कमिट होने से पहले ही इसने एक ऐसे लॉक को अनलॉक कर दिया जो कि एक्सक्लूसिव लॉक था, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्ट्रिक्ट 2PL सिंपल सी बात बोलती है, अगर किसी ट्रांजैक्शन ने किसी डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक लिया है तो भाई वो उसको होल्ड कर रखेगी लास्ट तक, कमिट होने से पहले, जस्ट पहले ही वो उसको रिलीज करे, और उससे पहले वो इन बिटवीन उस एक्सक्लूसिव लॉक वाली डेटा आइटम को रिलीज ना करे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट 2PL। रिग्रेस की बात करते हैं, रिग्रेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये एक और छोटी सी बात होती है, ये कहते हैं सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक की क्यों बात कर रहे हो, कोई मर्जी लॉक लो, चाहे शेयर्ड हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, तो भाई सारे के सारे लॉक ही एक ट्रांजैक्शन होल्ड कर रखे जब तक वो कमिट नहीं होती। जस्ट कमिट होने से पहले वो सारे के सारे, चाहे वो शेयर्ड लॉक लिया हो किसी डेटा आइटम पर, चाहे वो एक्सक्लूसिव लॉक लिया हो, तो इन बिटवीन वो अनलॉक ना करे, कमिट होने से जस्ट पहले करे, उसके बाद वो तुरंत कमिट हो जाए, उसके बाद भी डेटाबेस में चेंजेस हो गए फिर फर्दर कोई भी ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस करे, शेयर लॉक एक्वायर करे, एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करे, तो ये कैस्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम है, यानी कि ये फेलियर वाली जो प्रॉब्लम है ये फिर नहीं आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रेफरेंस पूछा जाता है। 2PL तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसके फर्दर मॉडिफाइड वर्जन्स क्या है, तो एक स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट सिर्फ ये कहती है कि एक्सक्लूसिव लॉक को लास्ट तक होल्ड कर रखे कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी डेटा आइटम पर लिया है, और रिग्रेस कहती है भाई एक्सक्लूसिव लॉक भी और शेयर लॉक भी, कोई भी लॉक लिया हो किसी डेटा आइटम ने, ट्रांजैक्शन ने किसी भी डेटा आइटम पर, तो वो सबसे लास्ट में ही कमिट होने से पहले ही अनलॉक हो, इन बिटवीन कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी डेटा आइटम को रिलीज ना करे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, मैं यहाँ पर कह रहा था कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर पेंडिंग है। सो कैस्केडिंग रोल बैक हो सकते हैं 2 फेज लॉकिंग में, कैसे हो सकते हैं मैंने बता दिया, और यहाँ पर यही 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। कैस्केडिंग रोल बैक कैन बी अवॉइडेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ 2 फेज लॉकिंग कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट 2PL, and this protocol requires not only that locking भी 2 फेज, सिर्फ लॉकिंग को ही 2 फेज नहीं करना, बट ऑल्सो जो भी एक्सक्लूसिव मोड वाले लॉक हैं कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर लिए हैं तो भाई वो उसको लास्ट तक लेकर रखे, कमिट होने तक लेकर रखे उसके बाद, और उसके बाद फिर रिग्रेस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये कहता है कि सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक नहीं, कोई भी लॉक, ऑल लॉक्स टू बी हेल्ड अंटिल द ट्रांजैक्शन कमिट, और फिर नाउ ट्रांजैक्शंस कैन बी सीरियलाइज्ड इन द ऑर्डर इन व्हिच दे कमिट। तो यहाँ से तो आपको क्लियर आइडिया हो ही गया होगा। तो यहाँ से तो गारंटीड हमें सीरियलाइजेबिलिटी मिलेगी, जो पहले कमेंट कर रही है वो ही पहले एग्जीक्यूट होगी। बिकॉज अगर हम कुछ इस तरह का सिनेरियो फॉलो करेंगे स्ट्रिक्ट 2PL का या रिग्रेस का, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही तब होगी जब पहली वाली कमेंट कर जाएगी या कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ से सीरियलाइजेबिलिटी भी डेफिनेटली हमें मिल रही है। सो ये स्टोरी है, और बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये कहता है कि हम लॉक कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं 2 फेज लॉकिंग के केस में। तो अगर मैं किसी शेयर्ड लॉक को अपग्रेड कर देता हूँ या कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सक्लूसिव में, तो उसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। और अगर हम किसी एक्सक्लूसिव लॉक को कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्ड में, श्रिंकिंग फेज की बात होती है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम डाउनग्रेड बोलते हैं उसको। तो ग्रोइंग फेज में हम किसी शेयर्ड लॉक को, यानी कि डेटा आइटम ने लिया तो उसको सिर्फ रीड करने के लिए था,
बट फर्दर उसको नीड लगी या उसका कुछ ऐसा प्रोसेस था कि उसकी वैल्यू को अपडेट भी करना चाहती है, तो ये भी पॉसिबल है PL के केस में. सो कैन कन्वर्ट एनी शेयर्ड लॉक टू एक्सक्लूसिव लॉक इन द केस ऑफ ग्रोइंग फेज, तो इसको हम बोलते हैं अपग्रेड. एंड अगर श्रिंकिंग फेज की बात करें तो यहाँ पर हम किसी एक्सक्लूसिव लॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्ड लॉक पर, और इसको हम डाउनग्रेड बोलते हैं. सो दिस प्रोटोकॉल एश्योर्स serializability बट स्टिल रिलाइज ऑन द प्रोग्रामर टू इंसर्ट द वेरियस लॉकिंग इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कोडिंग के फॉर्म में बता रखा है कि क्या ये सिनेरियो रहेगा, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट आज के टॉपिक की तरफ. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकिंग की अगर हम बात करें तो इसके बाद आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं. और इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं, डेडलॉक से हम कैसे डील करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो भाई लॉकिंग इम्प्लीमेंट कैसे होती है ये हमें सिर्फ पता होना चाहिए, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, सिर्फ हमें याद रखनी है ये चीज़ें. सो एक लॉक मैनेजर है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट प्रोसेस टू विच ट्रांजेक्शन सेंड लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट. तो भाई डेफिनेटली ट्रांजेक्शन भी अपने आप में एक प्रोसेस ही है, तो एक सेपरेट हमने प्रोसेस बना दिया जिसको ट्रांजेक्शंस जो हैं वो रिक्वेस्ट भेजेंगी किसी भी अनलॉक या लॉकिंग की, और the lock manager replies to a lock request by sending a lock grant message. तो अगर वो grant करना होगा वो उस particular data item पर lock, तो ये एक message send करेगा and the requesting transaction waits until its request is answered. तो पहले उसने request की, तो जब तक lock manager की तरफ से कोई message नहीं आता, approval नहीं होता, तब तक वो transaction wait करेगी. Transaction वेट करती रहेगी और लॉक मैनेजर चेक करेगा भाई कौन सा लॉक ऑलरेडी एक्वायर है या ये डेटा आइटम फ्री है. तो अगर फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी. लेकिन अगर एक्सक्लूसिव लॉक पर है तो फिर लॉक मैनेजर सोचेगा, वेट करेगा जब तक वो फ्री नहीं होता, उसके बाद ही वो एक्सेस देगा. एंड लॉक मैनेजर मेंटेन्स अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज लॉक टेबल to record the granted locks and pending request. तो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है लॉक मैनेजर का, वो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है जहाँ पर वो देखेगा भाई कौन कौन से डेटा आइटम पर कौन कौन से लॉक अभी ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शन की कौन कौन से लॉक के लिए यानी कि एक्सक्लूसिव या शेयर के लिए जो रिक्वेस्ट हैं वो पेंडिंग है, उस अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनेज करके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता रहेगा. और लॉक टेबल इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एज एन इन मेमोरी हैश टेबल इंडेक्स्ड ऑन द नेम ऑफ द डेटा आइटम बीइंग लॉक. तो आई होप इंडेक्सिंग क्या है, हैशिंग क्या है सब लोगों को पता है. तो यहाँ पर एक हैश टेबल बनेगा, तो जो इंडेक्स है यहाँ पर वो हमारे डिफरेंट डेटा आइटम्स हो सकते हैं. और ये एक सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पर गिवन है, तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना. तो ये कह रहा है कि डार्क ब्लू जो रेक्टेंगल है ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को ये वाली डेटा आइटम मिल चुकी है, और जो लाइट ब्लू में है वो भी वेट कर रही है. सिमिलरली लॉक टेबल आल्सो रिकॉर्ड्स द टाइप ऑफ लॉक ग्रांटेड और रिक्वेस्टेड. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर दो ट्रांजैक्शंस शेयर्ड लॉक की मांग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉक मैनेजर को वो एक्सेस देने में. लेकिन अगर कहीं भी एक रीड कर रही है और दूसरा उसको राइट करना चाहती है तो फिर उस केस में जो लॉक मैनेजर है वो अप्रूव नहीं करेगा, वो वेट कराएगा ट्रांजैक्शन को जब तक वो डेटा आइटम फ्री नहीं हो जाती. सो दैट्स व्हाई किस टाइप का लॉक ग्रांट है, कौन सी ट्रांजैक्शन को कौन से डेटा आइटम पर, ये सारा काम है लॉक मैनेजर का. और लॉक मैनेजर ये एक प्रोसेस ही है, वो एक फर्दर डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लॉक टेबल बोल रहे हैं. New request is added at the end of the queue of the requests for the data item and granted if it is compatible with all earlier locks. तो already मैं बता चुका हूँ क्या है. Unlock request results in the request being deleted and later requests are checked to see if they can now be granted. तो जैसे ही अनलॉक परफॉर्म होगा एक डेटा आइटम रिलीज होगी, उसके बाद चेक करेगा भाई किसकी प्रायोरिटी पहले है, क्यू में कौन पहले ट्रांजैक्शन वेट कर रही है, उस ट्रांजैक्शन को ये वाले डेटा आइटम पर एक्सेस दिया जा सकता है या नहीं, वो कौन से टाइप ऑफ लॉक की बात कर रही है. तो ये सारी चीजें मैनेज करना काम है लॉक मैनेजर का. And if transaction aborts, all waiting or granted requests of the transactions are deleted. तो ये I hope आप लोगों को पता लग गया होगा कि वो क्या है. तो यहाँ पर अलग अलग डेटा आइटम है, A है, B है, C है, D है. तो हो सकता है कि एक टाइम पर डेटा आइटम A को दो अलग अलग ट्रांजैक्शन सिर्फ रीड करना चाहती हो तो एक T1 और T8 दोनों को एक्सेस दे देगा. एंड हो सकता है भाई T2 जो कहती है मुझे तो चाहिए एक्सक्लूसिव लॉक, तो ये कहेगा कि अभी वेट कर, पहले इसमें इनमें से किसी को फ्री करने दे या जिसके पास भी है. सो ये सारी स्टोरी यहाँ पर चलती रहेगी. लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, उसके साथ आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं.
डेडलॉक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी हमने देखा कैसे हो सकता है. सो सिस्टम इज डेडलॉक्ड इफ देयर इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस सच दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन द सेट इज वेटिंग फॉर अनदर ट्रांजैक्शन इन द सेट. तो भाई T3 कहती है कि मुझे वो वाला डेटा आइटम चाहिए, लेकिन वो तो T4 के पास है और T4 उसकी वेट कर रहा है कैसे डेटा आइटम की जो T3 ने होल्ड किया हुआ है. तो ये एक प्रॉब्लम है डेडलॉक की. तो मेनली जो अगर हम बात करें डेडलॉक हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो डेडलॉक हैंडल करने के दो ही मेन तरीके हैं. या तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम सिस्टम में डेडलॉक आने ही ना दें. सेकंड मेथड भाई डेडलॉक आ गया तो उसके बाद डेडलॉक को डिटेक्ट करके डेडलॉक रिकवरी उसको हम रिकवर करेंगे. तो ये दो मेथड है, ये यहाँ पर बड़ी अच्छे हमारे बुक में भी गिवन है रिलेटेड विद डेडलॉक. तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, तो ग्राफ बेस हमारे सिलेबस में नहीं है. So this is very interesting thing. आप लोग यहाँ देख सकते हैं there are two principal methods for dealing with the deadlock problem. तो अगर deadlock problem है तो उससे डील करने के दो ही मेथड है, या तो हम प्रिवेंट कर दें और प्रिवेंट के लिए हम प्रोटोकॉल बना दें और वो प्रोटोकॉल इंश्योर करे भी सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्टेट में जाएगा ही नहीं. दूसरा है भी डेडलॉक आ गया हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें डेडलॉक को डिटेक्ट करना है और उसको फिर रिकवर कर देना है. तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं. सो डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर एंड कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो भाई डेडलॉक प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिकवरी की भी बात करेंगे. तो वेट डाई स्कीम क्या है, बाउंड वेट स्कीम क्या है और उसके बाद फिर टाइम आउट बेस्ड स्कीम्स क्या है. सो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन वेरी मच डिटेल. डेडलॉक को हमें प्रिवेंट करना है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो मल्टीपल कंकरेंसी के केस में आ सकती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग नाउ यू कैन.